So question is, we are going to create a linked list. At the same time, we are going to display that also. So as I said, now we are going to use modular approach. That means you need to create two modules or two functions, separate functions. One for creating the list and other for displaying the list. So let us start with that. The question is, write C program for creating singly linked list having an element. So meanwhile, you guys can also write a question and display. So that's what we need, display of the list as well. Okay, so what we are going to do here, create separate functions for create and display. So this is the question for you. Let us start with this. So very first thing, we need to follow the basic initial main function ka part. Now, as I said, we are going to use the functions here. We need to declare those first. I'm declaring those functions right away. So I'm naming one function as display, void display. I'm passing one argument it, having a data type as node, and I'm passing it a pointer. In detail, I'll tell you why is it so and how to do this. Secondly, node star create int n. Create is a function. We are passing an argument as how many number of nodes to be created. And what is this node? Node is return type. So basically what it will return a node. कौन सा नोड? हेड नोड. इफ यू रिमेंबर, कोई भी लिस्ट का हम लोग क्या स्टोर करते हैं? हेड स्टोर करते हैं. हेड एक्चुअली क्या रहता है? हेड भी एक नोड ही रहता है. तो इसलिए क्रिएट फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रहेगा? नोड. void main. So here our actual step starts. So very first thing, I'll declare a structure. So as I said, half of the part always remains the same whenever you are doing this linked list part, which we have already studied. So struct node, what it will be having? It will be having two parts. One is data, other is pointer to it. So I have created structure here. Now, inside main, we will declare desired variable. So int n, why? Because we need to take the input from the user. So number of elements to be inserted, that will be stored in n. Then what we need is head node. तो उसके लिए मैं फिलहाल h simple variable use कर रहा हूँ for storing the value of head returning from the list, that is head. चलो पहला स्टेप क्या रहेगा? printf
printf enter the number of elements. अब ये देखते हैं यूजर क्या करेगा, पहले नंबर एंटर करेगा. इन केस इफ ही फाइंड्स दिस स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन, that number has to be stored into variable n. So %d and n. Now h is equal to, guys, this is the catch, h is equal to, what is the name of the function? Create. और उसको हम लोग क्या पास करने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ नोड जो हमने n में स्टोर किया है वो एज अ आर्ग्यूमेंट पास करने वाले हैं. तो ये है फंक्शन कॉल, दिस इज फंक्शन कॉल. और ये हम लोग कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पे इनिशियली डिक्लेयर किया था क्रिएट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. अब क्रिएट फंक्शन बेसिकली क्या करने वाला है, लिस्ट क्रिएट करने वाला है, लिंक लिस्ट. बट द पॉइंट हियर इज लिंक लिस्ट, ऐसा जो लिंक लिस्ट वो क्रिएट करेगा उसका रेफरेंस मतलब अपना इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हेड. तो इसलिए वो रिटर्न क्या करेगा, इट विल रिटर्न नोट टाइप वेरिएबल हेड. वो हेड जो लिस्ट का रहेगा वो इस एच में स्टोर होगा. तो मतलब अपने प्रोग्राम में वो जो भी लिस्ट क्रिएट होगा उसका हेड हमेशा इस एच में स्टोर रहेगा. एंड दैट्स व्हाट वी नीड ऑलवेज. नाउ अज्यूम कि चलो एक लिस्ट क्रिएट हो गया है, वी आर गोइंग टू सी दैट, बट चलो एक हो गया लिस्ट क्रिएट और उसका हेड अपने पास है, उसका रेफरेंस स्टार्टिंग रेफरेंस हेड अपने पास है. तो फिर उसी लिस्ट के साथ उसी लिस्ट को हम लोग क्या करने गए, सिंपली डिस्प्ले करने गए. सो आई एम जस्ट राइटिंग द statement here, the elements in the list, and I expect that below this statement the elements of the list supposed to be displayed, जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं. तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने वाले हैं. बट डिस्प्ले किसको करना है, उसी लिस्ट को करना है जिसका हेड ये है. तो बेसिकली डिस्प्ले फंक्शन को क्या पास करते हैं हम लोग, डिस्प्ले फंक्शन को हम लोग नोट टाइप वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे जो कि है h. तो हम लोग सिंपली डिस्प्ले क्या कर रहे हैं, h. तो इसका रेफरेंस पास किया. तो व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो फंक्शन कॉल. कौन सा फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन. एंड वन दिस इज डन, okay, so we reach till this part where we are calling display function. And once display function is called, our purpose is achieved, that we wanted to display the list after creating it. Then the whole thing is we need to simply stop. This is supposed to be the flow. Now the part remaining is create function का logic और module and display function का. Let us start with that. ये function call and ये सब कैसे process होगा. Okay, so now I am first creating the display function का logic here. What is return type of display function? It's node. What is the name? Create. And what is the argument to pass in n? Node star p. क्यों? लॉजिक हैंडल करने के लिए. स्टार हेड, अगेन सेम फंडा.
int I. Why I? Because अभी n टाइम्स करना है अपने को, मतलब 5 बोला तो 5 नोड्स क्रिएट करना है लाइकवाइज। तो फॉर लूप में हम लोग वो इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि रिपीटेटिव टास्क के नोड बार बार क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम लोग इटरेशन मतलब लूप यूज करेंगे, तो उसका काउंटर है I. नाउ द सेम थिंग, व्हाट, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट? So first we will create a empty node. How to create that? Head is the variable, and we need to allocate the memory with the help of memory allocation function malloc. अब उसको कैसे समझेगा कितना मेमोरी अलोकेट करना है? यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर। किसका साइज? स्ट्रक्ट नोड का साइज। तो हेड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार एम अलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये स्ट्रक्ट नोड कहां से आया? इसका जो भी साइज है उतना मेमोरी ब्लॉक अलोकेट हो जाएगा। So what is the next? We need to take the first element. So how we can take that? After creating the empty block, so I'm just representing that here, and I'm naming this as head. ना इसमें कुछ वैल्यू है, डेटा पार्ट में भी कुछ वैल्यू नहीं है, और पॉइंटर पार्ट में भी कुछ वैल्यू नहीं है। So what is the next step? printf enter first element in the list. So first this statement is displayed on the screen. Definitely user will enter the first value, where that would get stored head data. So as we are very well aware कि हर एक नोड के दो पार्ट है, एक डेटा सेक्शन और एक नेक्स्ट पॉइंटर सेक्शन है। तो जो भी वैल्यू जाएगा वो हेड के डेटा सेक्शन में जाएगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस मेमोरी पॉइंटर काइंड ऑफ ऑपरेटर। तो हेड के डेटा में वो डायरेक्ट करेगा, और वो जो भी वैल्यू है इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी हेड के डेटा पार्ट के अंदर वैल्यू स्टोर हो गया। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? हेड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। इससे क्या हुआ? ये जो हेड है उसका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंटर, फिलहाल जब ये स्टेप पे क्रिएट हुआ तो खाली था, कुछ भी नहीं था वैल्यू। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? हेड का नेक्स्ट नल, NULL, ये डिफाइंड कीवर्ड है और वो ऑपरेटर है जो क्या करेगा? मेमोरी नल कर देगा। इतना अंडरस्टैंडिंग किया आपने तो भी इनफ है नल के लिए। तो नल हो गया हेड नेक्स्ट। तो अभी अपने पास ऐसा कुछ मेमोरी में है। व्हाट वी आर डूइंग? P इज इक्वल टू हेड। तो ये जो हेड है उसका रेफरेंस P नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट? फॉर I is equal to 1, I less than equal to n minus 1, I plus plus। अब देखो P next is equal to, तो ये P है, तो P का नेक्स्ट के लिए हम लोगों ने कोई तो एक रैंडम ब्लॉक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्रिएट होगा। तो ये भी एक एड्रेस पॉइंटर रहेगा। P नेक्स्ट सेम नोड स्टार malloc size of struct node. So we have created separate block till this step. We will ask user to enter value. Next step, same scanf
So what's supposed to be the value and where it should get stored? P next मतलब ये रेफरेंस और उस P next के डेटा सेक्शन में जाएगा. So now I am not taking help of any third variable. I am just using this only. तो ये P है और ये P next है. P next का डेटा मतलब ये पार्ट. तो ये P next एक ही रेफरेंस है, उसका डेटा मतलब ये इधर सपोज 20 स्टोर हो. This is done and now P is equal to P next. तो ये P is equal to P next. तो ये P next है. P is equal to P next से क्या होगा? अब P में ये रेफरेंस स्टोर होगा. तो now head is no longer P और P is no longer head but P is now P next. Then अब जब मैं लिखता हूँ P next is equal to null, तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ? इसका नेक्स्ट को नल कर रहा हूँ. और अगर ये पहले इस स्टेप में P नेक्स्ट ये था मतलब ये ऑलरेडी P था और उसका नेक्स्ट तो ये सेक्शन लिंक ऑलरेडी सेटअप हो गया, फिर P को मैंने आगे लाया. तो नाउ दिस इज नॉट नल बट दिस इज P. तो अभी फर्स्ट के साथ सेकंड अटैच हो गया. सो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? नाउ लूप. तो अज्यूम करते कि n का वैल्यू 4 है. n का वैल्यू अगर 4 है तो n का वैल्यू 4 यहाँ पे पास होगा. पहला स्टेप होके 4 माइनस 1 मतलब ये लूप 3 टाइम्स चलेगा क्योंकि पहला नोड यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट होगा रहेगा दिस वन. तो जब i का वैल्यू 1 रहेगा तो ये क्रिएट हुआ. सेम स्टेप्स रिपीट. अभी i का वैल्यू 2 होगा तो 2 लेस देन 4 ट्रू है. सॉरी 2 लेस देन 3 ट्रू है, अंदर जाएगा क्योंकि n माइनस 1 मतलब 4 अगर है तो 4 माइनस 1 3. तो 2 लेस देन 3 ट्रू है. वापस P नेक्स्ट. अब ये P है उसका नेक्स्ट तो डायरेक्टली देखो लिंक ही सेटअप हो गया देखा जाए. तो ये P नेक्स्ट है. फिर सेम स्टेप्स रिपीट. तो यहाँ पे ये जाएगा 30, फिर ये स्टेप पे P नेक्स्ट हो जाएगा नल. तो भी दिस विल बिकम P एंड देन फोर्थ टाइम एक्चुअली थर्ड टाइम एज पर लूप. तो जब अभी i का वैल्यू 1 था, फिर यहाँ पे i का वैल्यू 2 था, यहाँ पे i का वैल्यू 3 है, तो ये सब रिपीट हो रहा है. एंड देन ये P इज इक्वल टू P नेक्स्ट स्टेप हो गया, ये ब्लॉक क्रिएट हो गया, इसमें वैल्यू यूजर ने डाला, इसका नेक्स्ट मैंने नल कर दिया. नाउ दिस इज नॉट नल, दिस बिकम्स P बट देन लूप इज डन क्योंकि अभी i का वैल्यू 4 हो जाएगा एंड 4 लेस देन 3 फॉल्स हो जाएगा तो एग्जिट करेगा. तो लाइकवाइज अपने पास ये लिस्ट क्रिएट हो गया बट नाउ रिमेंबर हम लोग ये सेपरेट फंक्शन में कर रहे हैं. फंक्शन कॉल क्या था गाइस? फंक्शन कॉल ये था h इज इक्वल टू क्रिएट n और उसको नंबर मतलब 4 पास किया, यहाँ पे 4 आया. इसका रिटर्न टाइप क्या? नोड. तो मतलब ये क्या रिटर्न करेगा? सो अभी ये क्या रिटर्न करेगा बेसिकली? P रिटर्न करना चाहिए या हेड रिटर्न करना चाहिए? तो ऑब्वियसली हेड. ये देखो अभी तक हेड का रेफरेंस यही है, पहला नोड लिंक का स्टार्ट, वो अभी तक हिला नहीं है वहां से. तो P सिर्फ हम लोग रेफरेंस को आगे बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं बट हेड इज इंटैक्ट. So basically, when we are returning from this, what we will return? We should return head. अब ये head रिटर्न हो रहा है, कहाँ पे रिटर्न हो रहा है? जहां से कॉल किया था. कॉल कहाँ से किया था guys? कॉल कहाँ से किया था? ये स्टेप से कॉल किया था. तो क्रिएट n, क्रिएट 4, 4 यहाँ पे आया, ये सब कुछ चला, ये लिस्ट क्रिएट हो गया. रिटर्न हेड कर रहा हूँ तो हेड मतलब अभी भी यही पहला ही फर्स्ट रेफरेंस. तो फर्स्ट रेफरेंस यहाँ पे h में स्टोर होगा, यहाँ से कॉल गया था तो यहाँ पे h में स्टोर होगा. एंड द एलिमेंट्स इन द लिस्ट डिस्प्ले h, तो मतलब हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को क्या रेफरेंस पास कर रहे हैं? वही रेफरेंस पास कर रहे हैं जो अभी लिस्ट क्रिएट हुआ है उसके हेड का.
So that will be our last step to do. So what is that? Display function. So I'm creating display function separately over here. Void display. It will receive what? Head. Now what is the possibility we need to check? जो रीड आपको एज ए इनपुट आ रहा है वो नल है क्या? तो इफ h इज इक्वल टू नल, अगर h नल है तो लिस्ट एम्प्टी है, तो आपको बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट डाल देने का, प्रिंट एफ एम्प्टी लिस्ट। एल्स, चलो एम्प्टी तो नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस एक रेफरेंस नोड लेंगे। तो एल्स p is equal to h. So for that matter, p is equal to h. ये p is equal to h का जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे लिखता हूँ, while p next not equal to null, while p next not equal to null, पहले डिस्प्ले करेंगे प्रिंट एफ %d p का डेटा, फिर वापस p को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, p इज इक्वल टू p नेक्स्ट, ये while खत्म हो गया, ये else खत्म हो गया, अरे void का बॉडी खत्म हो गया। तो देखो अभी ये वर्क कैसे करेगा। तो अपने पास ये लिस्ट है, हम लोगों ने फंक्शन को ये हेड मतलब ये स्टार्ट पास किया, तो मतलब ये एड्रेस इसको पास किया। अब वो नल है क्या? नल तो नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिस्ट क्रिएट किया है, तो नल नहीं है, तो एल्स में आएगा। p इज इक्वल टू एच किया, मतलब क्या किया कि p वेरिएबल में हम लोग ने सिंपली हेड का जो एड्रेस है वो स्टोर कर लिया। क्यों? क्योंकि हेड को हम लोग को कभी भी चेंज नहीं करना है, तो हेड से कुछ मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, हेड को वैसे इंटैक्ट रखेंगे। तो हेड को p में स्टोर किया, एंड देन while p next not equal to null, this is the simple अंडरस्टैंडिंग। अब जो हेड है वही p है, ये डिस्प्ले के लिए बता रहा हूं मैं, इनिशियल लेवल पे, मतलब ये स्टेप पे जो हेड है वही p है। फिर कंडीशन क्या चेक हो रहा है, p नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। देखो ये हेड है वही p है, इसका नेक्स्ट नल है क्या? तो नहीं है, तो नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू होगा तो अंदर आएगा p का डेटा, मतलब यही हेड है उसका डेटा, मतलब 10 प्रिंट करेगा। और फिर p इज इक्वल टू p नेक्स्ट करेगा। अभी p इज इक्वल टू p नेक्स्ट, तो ये p था, उसका नेक्स्ट ये है, दैट बिकेम p। नाउ दिस इज नो लॉन्गर p, नाउ दिस इज p। नाउ दिस इज p, अगेन रिपीट। p का नेक्स्ट नल है क्या? इसका नेक्स्ट नल है क्या? इसका नेक्स्ट नल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हो गया, तो अंदर आएगा p का डेटा, मतलब कौन? फिलहाल p है, उसका डेटा मतलब 20 प्रिंट करेगा। p इज इक्वल टू p नेक्स्ट, तो अभी p इज इक्वल टू, अभी ये p बन गया। वापस रिपीट, p का डेटा, p का नेक्स्ट नल है क्या? तो p का नेक्स्ट नल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू का डेटा मतलब कौन? 30, तो प्रिंट क्या होगा? 30। p इज इक्वल टू p नेक्स्ट, अभी ये p बन गया। नाउ p इज इक्वल टू p नेक्स्ट, तो p नेक्स्ट हम लोग कहाँ तक पहुंचे? p नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया, p इज इक्वल टू h, p नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल,
10 डिस्प्ले हो गया, फिर p इज इक्वल टू पी नेक्स्ट किया, तो अभी ये p है, वापस 20 डिस्प्ले किया, फिर अभी ये p है, फिर वापस 30 डिस्प्ले किया, तो अभी p इज इक्वल टू पी नेक्स्ट, तो ये p नेक्स्ट है, ठीक है। अभी p नेक्स्ट, तो p ये है, इसका नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स है तो एग्जिट करेगा ना। तो ओके, इस लॉजिक के हिसाब से हम लोग को एक एडिशनल थिंग हैंडल करना पड़ेगा। अगर मैंने यही लॉजिक फॉलो किया तो क्या हो रहा है, मैं 40 को मिस कर रहा हूँ। तो ये वाइल के बाहर आने के बाद मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बाहर आ रहा हूँ मैं डायरेक्टली, मतलब ये पी डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो एक बार मुझे वो बिना भूले प्रिंट एफ %d पी डेटा डिस्प्ले करना होगा, तभी जाके ये 40 डिस्प्ले होगा। नहीं तो क्या होगा, 40 को हम लोग मिस कर देंगे, क्योंकि पी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो ये 40 के लिए केस फॉल्स जा रहा है, उसका नेक्स्ट नल है, तो हम लोग इधर ही एग्जिट करेंगे, तो अंदर नहीं आएंगे, तो पी डेटा मिस हो जाएगा, मतलब 40 डिस्प्ले नहीं होगा। तो फॉर दैट मैटर आई हैव हैंडल्ड दिस प्रिंट एफ %d पी डेटा, तो अभी 20 20 30 40 सब कुछ डिस्प्ले हो गया। तो गॉट दिस लॉजिक, दिस वाज फॉर द होल कोड। तो ये इस कोड का ये फर्स्ट पेज है, वेयर वी आर creating required declaring required functions, then creating the part of main, we are calling the create function here, then we will receive the address of head, store that in h, then we are calling the display function here, and we are passing the h to display function, that is list का head। तो create function कैसे separately work करता है, have shown here, and display function कैसे separately work करता है, have shown here। यहाँ से यहाँ तक क्रिएट का लॉजिक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्ले का लॉजिक। इज इट क्लियर? एंड आई सपोज मैंने यहाँ पे पी को डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पे किधर भी पी डिक्लेयर नहीं है, तो क्या करते हैं ना, एक स्टेप ऐसा कर देते हैं, नोड पी इज इक्वल टू सॉरी, नोड स्टार पी मिस्टेक, एंड पी इज इक्वल टू एच। तो अभी कैसा वो नोड यहाँ पे भी डिक्लेयर हो गया, क्योंकि ये नोड स्टार पी यहाँ पे डिक्लेयर किया, वो इस फंक्शन का पार्ट है, हम लोग उसको ग्लोबली डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो ये स्टार पी बस इधर ही एक्सेसिबल रहेगा। तो इस डिस्प्ले फंक्शन के लिए मैंने सेपरेटली नोड स्टार पी कर दिया। So that's it for creating and displaying the list.